So starting off, Bismillahirrahmanirrahim. Underline all the SI base units. ठीक है? We have to underline all the base units. We do not need to circle. We only have to basically underline. What we have to underline? The SI base unit. So you know that ampere is the SI base unit. Yes, it is right because current is the SI base quantity. ठीक है? Coulomb is not SI base unit. Current is SI base quantity. It is not the unit. ठीक है? So this is not the answer. Acha, remember this thing that you should not make the cross. This is only I am making to explain you guys. Yes, Kelvin is basically SI base unit because temperature is the SI base quantity and its unit is Kelvin. In Newton is not the SI base unit. ठीक है? Then the next question they are saying a toy car move in a horizontal straight line. The displacement as of the car is given by the equation. So basically this is a car. ठीक है? It is moving in a straight line. Now they are saying this equation is basically giving the displacement of this toy car, displacement covered by this toy car. ठीक है? So they are saying state two condition that is applied to the motion of the car in order for the above equation to be valid. ठीक है? So for this equation, you know one thing that this equation is mainly like it is made by one of the big five. If I use this equation, v square is equals to u square plus 2as, ठीक है? So if I keep this initial velocity 0, so what will I do? I will just simply Acha, just simply what I have done, I have just kept the initial velocity 0. So this equation is made. ठीक है? So the very first condition must be that initial velocity must be 0. What is the second condition for the big 5? That acceleration must be constant. ठीक है? Acceleration must be constant. ठीक है? Then in the next question, next part they are saying experiment is performed to determine the acceleration of the car in B. Following measurement are obtained. ठीक है? We have to find the acceleration of the car. Is it clear? So for the acceleration of the car, what we have to do, we have to use the above mentioned formula, right? So we have to use this v square over 2s. Is it clear? For acceleration, I know one thing that acceleration is equal to v square, which is 2.75. The whole thing is square. ठीक है? Then 2 multiplied by s, which is 3.8. Now I will be using the calculator in order to find the answer. Yes, what it is? 2.75 square divided by 2 multiplied by 39. Sorry, 3.8. Then the answer I am getting is 0.972. ठीक है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, determine the percentage uncertainty. We need to find the percentage uncertainty. अब देखिए हमें absolute uncertainty तो पता नहीं है कि a की कोई वैल्यू पता हो, जैसे कि a प्लस माइनस उसकी कोई वैल्यू पता हो, डेल्टा a पता हो, तो हम कोई दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं. अभी हमें अरेंज करना है, इसी फार्मूले को मैं अरेंज करूँगा. कैसे अरेंज करूँगा? अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो ये क्या होगा? डेल्टा a% इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v%. ठीक है? प्लस
और मैं इसको क्या करूँगा डेल्टा एस परसेंट, ठीक है। अब नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट कि डेल्टा ए परसेंटेज मुझे निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ ए इज ऑफ वी इज़ गिवन टू अस विच इज़ 0.8, ठीक है, प्लस डेल्टा एस हमें गिवन है 0.5। तो इस तरीके से हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा डेल्टा ए परसेंट आएगा। इज़ इट क्लियर? तो मैं फिर फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ और कैलकुलेशन में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.5, ठीक है। सो ओवरऑल आंसर इज़ 21%। इट इज़ 2.1%, ठीक है, नॉट द 21। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज use your answer in C part 1 and C2 to determine the absolute uncertainty in calculated in the value of A। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, मैं क्या यूज़ करूँगा डेल्टा ए परसेंट, ठीक है, जो कि डेल्टा ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। सो आई विल फाइंड डेल्टा ए। फॉर डेल्टा ए मैं क्या करूँगा, अब देखें मुझे डेल्टा ए परसेंट ऊपर मैंने निकाल लिया विच इज़ 2.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए मेरे पास क्या है, ये मैंने ऊपर निकाला 0.972 मैं कर लूँगा और फिर मैं उसको डिवाइड करा दूँगा 100 से, तो मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। बोलते हैं एक मोटर है, यूज़ करता है वाई टू रेज द ब्लॉक, ठीक है, देन द बेस ऑफ द ब्लॉक टेक अप टू 0.49 सेकेंड्स में ऊपर गया, वर्टिकली अपवर्ड्स गया, ठीक है, फ्रॉम एक्स से वाई, कांस्टेंट स्पीड पे गया, ठीक है, और ड्यूरिंग दिस वाई द स्ट्रेन ऑफ 0.0012, द वायर इज मेड अप ऑफ यंग मॉडुलस 2.2 एक्सपोनेंट 10⁻11, ठीक है। ब्लॉक का वेट भी हमें पता, तो कह रहा है क्रॉस सेक्शन निकालें। क्रॉस सेक्शन के लिए मुझे एक बात पता है कि मेरा जो यंग मॉडुलस है वो है स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेन, ठीक है। मुझे स्ट्रेस तो पता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को मैं फोर्स पर यूनिट एरिया में कर सकता हूँ, और फोर्स मेरे पास है 1.4 10⁻⁴, ठीक है। एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन क्या है भाई, मेरे पास स्ट्रेन है 0.0012, ठीक है, और मेरे पास यंग मॉडुलस क्या है 2.2 10⁻11। अच्छा, ये किसी को समझ नहीं आया डिनोमिनेटर में ये कैसे आया, तो आप इसको यूँ समझ लें, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। मैं 1/E कर लूँगा तो फिर ए से ई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लूँगा ई को, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से ना मेरे पास ए आ गया। ज़रा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन में जो मोबाइल पे करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास अभी जो है कैलकुलेटर है नहीं। ये आ रहा है 5.3 एक्सपोनेंट 10⁻⁻5, ठीक है। फिर वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इंक्रीज़ इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज़ मांगे डिक्रीज़ मांगे, देंगे हम हमेशा चेंज ही, तो ये हो जाएगा mg डेल्टा एच, ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप इसको वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट स्पीड। एस इज इक्वल्स टू वी टी यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं इसका निकाल लूँगा वर्टिकल हाइट कवर्ड बाय द ये ब्लॉक जो है, तो मैं क्या करूँगा चेंज इन जी पी ई इज इक्वल टू, अच्छा एक्स से वाई, एम नहीं पता आपको, जी तो पता ही है, तो मैं एम जी को डायरेक्ट वेट ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1.4 एक्सपोनेंट 4,
एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें एस मतलब एस इज इक्वल्स टू वी टी को मैं अलग ही क्यों लिखूँ, इसको डायरेक्टली मैं इसके अंदर ही मतलब के ऐड करूँ, मतलब वी टी को एच की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एस इज इक्वल्स टू वी टी मुझे पता है 0.64 है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं इसको क्या कर दूँगा टी, और टी कितना है 0.49, इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन जी बी इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं, यार है 4390.4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4400 तकरीबन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं अपने डाटा का, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है मोटर हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ 56%, कैलकुलेट द, अच्छा कैलकुलेट द इनपुट पावर ऑफ द मोटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनपुट पावर बताना है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मुझे किसी भी तरीके से इनपुट निकालना है, तो मैं इनपुट के लिए क्या करूँगा, क्या इनपुट को इधर ले जाऊँगा, आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूँगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनपुट पावर आ जाएगी। इजी चीज़ है, डायरेक्ट फार्मूला के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। आउटपुट पावर क्या होगी हमारे पास, आउटपुट हम करवा क्या रहे हैं, आउटपुट हो क्या रहे हैं, मशीन का आउटपुट है क्या, ब्लॉक को उठवाना, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी आवर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, अच्छा आउटपुट एनर्जी है ना, हमारे पास एनर्जी का टाइम भी है, ठीक है, तो एनर्जी को मैं अगर टाइम से डिवाइड करा दूँ, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने टाइम से डिवाइड करा दिया, तो ये जो पावर आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पावर आएगी। तो यहाँ जो पावर आप डालेंगे वो वाली पावर डालेंगे जो कि हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पावर है, मतलब पावर जो निकालेंगे, आउटपुट पावर जो होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ही होगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप सिंपल एक मैसेज पे पूछ लिएगा कि ये समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ द ब्लॉक नाउ हैज़ अ यूनिफॉर्म deceleration of magnitude 1.3 from level y until the base of the block stops at g, ठीक है। तो अब करना ये है, टेंशन निकालनी है ना, अच्छा अब मैं सिंपली अगर यहाँ पे एक अप्रोच यूज़ करूँ कि नेट फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नहीं ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड तक वाई तक मूव कर रहा था, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे कहाँ तक मूव कर रहा था, वाई तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करूँगा फ्रॉम वाई टू जेड, ठीक है, क्योंकि उस दौरान कांस्टेंट स्पीड नहीं थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस वेट इज़ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। हमारे पास डिसेलरेशन गिवन है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इधर डिसेलरेशन हो जाएगी। मास हमारे वेट पता है, डिवाइड बाय जी करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा, और इधर ये वेट पता है, तो आप इधर से क्या करेंगे, टेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि द बेस ऑफ द ब्लॉक एस लेवल एक्स वाई जी एट टाइम्स टी एक्स वाई जी, ठीक है, मतलब टाइम एक्स पे क्या है, अच्छा हमें पता है टाइम एक्स से टाइम वाई तक हमारे पास हुआ क्या है, ये लाइन आप नहीं बनाइएगा, ये सिर्फ आपको डिवाइड करने के लिए बता रहा हूँ कि ये करा क्या है। आपने कांस्टेंट स्पीड यूज़ करी है, ठीक है, ये देखें टाइम टी एक्स से टी वाई तक स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब है ग्रेडियंट कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, स्पीड को कांस्टेंट शो करने के लिए कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखाऊंगा। फिर हमें पता है रिटार्डेशन हुई है, मतलब कि डिसेलरेशन हुई है, तो ये जो है ना
मैं यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड शो करूँगा विच रिप्रेजेंट्स कि दैट देयर इज़ अ डिसेलरेशन फ्रॉम वाई टू जेड। इधर ऊपर लिखा हुआ है कि डिसेलरेशन हुई है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के लिए जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगी। तो ये जो चीज़ है कर्व ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन दिखा रही है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ कितने। अच्छा भाई 7 क्वेश्चन है, ठीक है। सही है। मूविंग ऑन, जल्दी जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग सब, क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व पहले ऑलरेडी करा हुआ है, तो मुझे जो है क्वेश्चन पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिएगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, ठीक है। तो टू कंडीशन पूछिए भाई। टू कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की? नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए, प्रॉपर लिखिएगा। नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो, रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट एनी मोमेंट मस्ट बी, रिजल्टेंट टॉर्क या रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पिवट मस्ट बी ज़ीरो, या एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। फिर आपको बोला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन दिखाना है 30 न्यूटन के बराबर है। ये वाला आपको पता है इसके साथ एंगल नहीं गिवन, ठीक है। जिसके साथ एंगल नहीं गिवन उसके साथ साइन का फंक्शन आता है। तो क्या होगा 17 साइन 50, ये होगा 17 साइन 50 फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। एस वाई लिख देना स्ट्रिंग का वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपके पास ये 13 आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए लिखना है, ऊपर शो बोला हुआ है मतलब नीचे नेक्स्ट पार्ट में आंसर यूज़ होगा। मोमेंट अबाउट ए लेना है, तो वेट डब्ल्यू ऑफ द बीम, ठीक है। अब मैं इधर यूज़ क्या करूँगा, मुझे एक बात पता है कि मेरा ये जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है। तो मैं करूँगा क्या, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यूज़ ही कब करूँगा, जब बीम इक्विलिब्रियम में जो कि है। तो मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में कौन कौन इसको घुमा रहा है, मतलब इस तरीके से इसको घुमाने वाली एक तो ये फोर्स है, ठीक है। बस यही फोर्स है इसको जो यूँ घुमाएगी। तो वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ पे लग रही है वो, 0.50 पे लग रही है। इज इट क्लियर? दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको इस तरफ घुमाने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रिंग का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मैं कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये फोर्स कहीं यहाँ ऊपर की तरफ होती तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, ठीक है, ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन कुछ है ही नहीं पूरे, मतलब जो भी फोर्स कोई पिवट के लाइन ऑफ एक्शन पर हो ना, तो एक बात याद रखिएगा, उसका कोई मोमेंट नहीं होता, तो वो रोटेट भी किधर ही करेगी, कोई सेंस भी नहीं बनता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्लॉकवाइज मोमेंट पे निकालना है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट पे एक आपका वेट आ गया जो आपको निकालना है, वेट मल्टीप्लाई बाय वॉट। अब वेट जो है ये हाइट, ये डिस्टेंस क्या है, बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के मुताबिक, दैट इट इज़ अ पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी है सपोज टू है वो, और ज़रूर बीच में होता है। तो ये 0.50 है, 0.50 अगर ये पूरी है तो ये कितनी हो गई 0.25, ठीक है। तो वेट क्या हो गया 0.25 पर है, तो 0.25 मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस और क्या कराया आपने 12 है। अब 12 पता है आपको कि 0.35 पर है, तो प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.35। इस तरीके से आप अपने पास क्या करिएगा, डब्ल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। अच्छा जी, ये हमें कैलकुलेट करना है क्या, कि calculate the magnitude of the vertical component of the force exerted by the beam। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक हिंज है, हिंज की एक सपोर्ट होगी, ठीक है। सपोर्ट की दो फोर्सेस होती हैं, राइट। और इसको ज़रा मतलब वो हमें इन शॉर्ट ये वाली फोर्स बनाने को कह रहा है, ठीक है।
ये वाली फोर्स बताने को कह रहे हैं। अब इस वाली फोर्स को हम बनाएंगे कैसे भाई? डिटरमाइन करने का तरीका ये होगा, मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये होता ये है भाई कि ये एक तो वर्टिकल फोर्स यूँ होती है और दूसरा इस पे ना यूँ लग रही होती है। ठीक है, ये दो तरीके से जो है ना फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी हिंज के जो है ना ऊपर। जब भी हिंज पे अगर आपको ये होता है सपोर्ट रिएक्शंस जैसे कहलाते हैं, मतलब सपोर्ट फोर्सेस कहलाती हैं जो कि लगती हैं हिंज की नेचुरली। मतलब हिंज इसको पकड़ के रखता है। अब आप देखिएगा वर्टिकल फोर्सेस में आपके पास हैं कौन कौन सी। एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। अपवर्ड फोर्सेस आपके पास ये हैं तो ये हैं। तो ऊपर आप देखेंगे ये जो लॉजिक यूज़ करी है ना हमने, ये जो नेट मोमेंट अबाउट एनी मोमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ जो लॉजिक यूज़ हो रही है यहाँ नेट फोर्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज़ ज़ीरो, ये यूज़ हो रही है। तो को वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा पता है कि में ऊपर की तरफ लगेगी। अब ये होता ये है कि दो नीचे की तरफ है, मतलब 12 प्लस W+12 है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करिए, नेट फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो का ये मतलब है। तो रिएक्शन आर कह लें आप, रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, आर प्लस आप ले लेंगे 13 जो कि आपका वर्टिकल फोर्स ऑफ द मतलब स्प्रिंग थी। तो आप इसमें से आर को अलग कर दें क्योंकि 12 तो आपने खुद ही ऑलरेडी निकाल लिया, तो ये 1 मार्क के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लॉक इज नाउ मूव टू द क्लोजर टू द एंड ऑफ ए ऑफ द बीम द अज्यूम दैट बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल स्टेट वेदर दिस चेंज विल इंक्रीज डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सर्टेड ऑन द। इसने कहा इस ब्लॉक को उठा के आपने जो है ना मूव कर दिया। किधर मूव करा है भाई? ए, आपने ए पे क्या कर दिया? अच्छा, दिस स्टेट whether the change will increase, decrease or have no effect on the horizontal component. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई वो नहीं आएगा, वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन जो है ना आपकी वर्टिकल इंक्रीज होगी। तो अफेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा, आपकी वर्टिकल पर आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे कोई असर नहीं आएगा। अगर आपका वर्टिकल बढ़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कम होगा, सो इट विल बी अ डिक्रीज। ठीक है, अच्छा 4 क्वेश्चन करके फिर फर्स्ट पार्ट वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, 2 ब्लॉक स्लाइड टूवर्ड ईच अदर इन फ्रिक्शन एंड सर्फेस एज शोन। ठीक है, 2 ब्लॉक हैं एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ठीक है, एक्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, मास ऑफ ब्लॉक एक्स पता करने को कहा है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमें सारे के सारे मोमेंटम पता है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास पता लगाने को कहा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हाफ mv² अगर यूज़ कर लें। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, P इक्वल्स टू mv से आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करें, आप सिंपली जो है ना, हमें मास नहीं पता ना, आप कुछ भी नहीं करें, आप इसको ये करें कि E इज़ इक्वल टू 1/2 रहने दें अपनी जगह पे।
एम को भी अपनी जगह पे छोड़ दें, बस वी की जगह पे पी अपॉन एम कर दें डिवाइड, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। तो ये ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम पी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, तो ये क्या हो गया, ई इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये फार्मूला याद करना, आपको इनिशियल मोमेंटम भी दिया, इनिशियल एनर्जी भी दिया, आप मास निकाल लेंगे। ये पता है, ये पता आप निकाल लेंगे। सर हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं, हमें ये फार्मूला तो पता नहीं है। तो भाई कोई ऐसी सच बात नहीं है इसमें, कोई इतना कोई जो है ना लॉजिक वाली बात है नहीं है। आप पी अपॉन एम को वैसे भी यहाँ पे देखिए, ये होना साइमल्टेनियसली था। आप यहाँ पे एनर्जी रखते, ठीक है, फिर आप क्या करते, एम वी आपके पास नोन आता, ना आपको वी पता था ना आपको एम पता था, तो आप वहाँ से रखते, फिर आप नीचे वाली इक्वेशन में आके सब्सटीट्यूट करते, और मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके ये वाला फार्मूला बना लिया, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये पता है, ये पता है, आप एम ईजीली निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक वाई आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन क्या, बिफोर द कोलिजन आपको पता है कि ये राइट साइड पे जा रहा है तो 0.37 हो जाएगा, वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 0.65 इज़ इक्वल टू, ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है 0.13 माइनस, मैं वाई कर लेता हूँ कि मोमेंटम ऑफ वाई, पी वाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह आप मोमेंटम ऑफ पी वाई निकाल लेंगे 0.37 को माइनस करा के से, और फिर ये फर्दर कैलकुलेशन कर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है द ब्लॉक एक्स एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स, पता है आपको, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन, कैलकुलेट द टाइम दैट ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। हमें टाइम बताना है, ठीक है, हमें ऊपर मोमेंटम पता है, बहुत आसान है, नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये जो डेल्टा टी है ये इंटरेक्शन टाइम होता है। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास डेल्टा पी गिवन है, ऊपर ये जो निकाला है, आपने क्या करें, आप कुछ भी नहीं करें, किसका चाहिए आपको, वाई का चाहिए ना, वाई का इनिशियल मोमेंटम पकड़ें, ये रहा वाई का इनिशियल मोमेंटम, इसको माइनस करा दें, ये जो आपने इधर से आंसर निकाला होगा, इन दोनों को सेपरेट करवा कर इसको और इसको सेपरेट करा के ये हमने निकाल लिया नीचे से, माइनस करा कर फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा क्योंकि वाई का बोला है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आएगा, नेट फोर्स से डिवाइड करा दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा टी आ जाएगी। इज़ इट क्लियर। तो ये थी फर्स्ट वीडियो, ठीक है। सेकंड वीडियो पे अगले 3 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो फिर आपका मार्च 2023 वेरिएंट जो है ना हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे।